Hello everyone, welcome to my channel HSV Harman Study Vlog. Today we discuss about some important MCQ of anatomy and physiology. So let's start. First question is who discovered the cell? Cell को किसने discover किया? Options are A. Altman, B. Robert Hooke, C. Loe, D. None of these. So the answer is B. Robert Hooke. Robert Hooke discovered the cell. Second question is cell is the options are A. Functional unit, B. Structural unit, C. Both A and B, D. None of these. Answer is option C. Both A and B. Cell is the functional unit and also structural unit. Third question is study of cell is called. Cell की study को हम क्या कहते हैं? Options are A. Mycology, B. Mitology, C. Cytology, D. Histology. Answer is C. Cytology. Study of cell is called cytology. स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी. माइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई. और हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू. सो ऑप्शन ए माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई, सी साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, डी हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू. फोर्थ क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट क्या है? ऑप्शंस आर ए सेल्स, बी टिश्यूज, सी बोन, डी हार्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन ए सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स डीएनए. सो जो फॉलोइंग दिए हुए हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसका अपना डीएनए होता है? Options are A. Lysosome, B. Mitochondria, C. Endoplasmic reticulum, D. All of above. So the answer is option B. Mitochondria has its DNA. Sixth question is ribosome are produced by. Ribosome किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? Options are A. Golgi body, B. Cytoplasm, C. Nucleus, D. Mitochondria. So the answer is option C, nucleus. Ribosome are produced by nucleus. Seventh question is ribosome are the center for. So ribosome किसका center है? Options are A. Photosynthesis, B. Respiration, C. Fat synthesis, D. Protein synthesis. So the answer is option D. Protein synthesis. Ribosome are the center for protein synthesis. Eighth question is chromosome present in. Chromosome कहाँ present होते हैं? Options are A. Cytoplasm, B. Nucleus, C. Lysosome, D. Mitochondria. So the answer is option B. Nucleus. Chromosome are present in nucleus. Ninth question is which of the following center for genetic material. सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेंटर है जेनेटिक मटेरियल के लिए? ऑप्शंस आर ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी राइबोसोम्स, डी लाइसोसोम्स. सो द आंसर इज ऑप्शन ए न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज अ सेंटर फॉर जेनेटिक मटेरियल. 10th क्वेश्चन इज अ मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस. सो लिपिड सिंथेसिस के लिए मेजर साइट कौन सी है? Options are A. RER, B. SCR, C. Mitochondria, D. Lysosome. So the answer is option B. SER. SER stand for smooth endoplasmic reticulum. RER stand for rough endoplasmic reticulum. So जो RER rough endoplasmic reticulum है ये मेजर साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस के लिए. और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होती है? एटीपी की प्रोडक्शन होती है. 11th क्वेश्चन इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज. सो इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन सेलुलर है जिसमें कोई सेल नहीं होता? ऑप्शंस आर ए बैक्टीरिया,
B. Fungi, C. Algae, D. Virus. So the answer is option D. Virus. So जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, उसमें एक सेल प्रेजेंट होता है. और जो फंजाई और एल्गी होते हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. बट जो वायरस है वो नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता. 12th question is distinction between prokaryotes and eukaryotes is based on. So जो prokaryote और eukaryote का difference है वो किस पे बेस करता है? Options are A. protein, B. plasma membrane, C. nucleus and D. DNA. So the answer is nucleus. So जो prokaryotes और eukaryotes का difference है वो किस पे बेस करता है? न्यूक्लियस पे. जो प्रोकार्योट है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. बट जो यूकार्योट है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. 13 क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. सो सेल के किस पार्ट को पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए. न्यूक्लियस, बी. लाइसोसोम, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So the answer is option C. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है और इसी से ही जब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो इसमें से हमें लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल इज फाउंड इन. सो क्लोरोफिल हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस आर ए. सेल वॉल, बी. सेल लेयर, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, D. chloroplast. So the answer is option D. Chloroplast. Chlorophyll is found in chloroplast. 15th question is part of the cell known as suicidal bag. So सेल के किस पार्ट को सुसाइडल बैग कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए. राइबोसोम, बी. लाइसोसोम, सी. सेंट्रोसोम, डी. नन ऑफ दीज. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. लाइसोसोम. सो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है. सो ये तो थे हमारे 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो आज हमने डिस्कस किए. इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.